বৰ্তমান দেশৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া আৰু যিবিলাক মানে নিউজ দেখি আছো সঁচাকৈ মানে বহুত দুখ লগা ঘটনা আৰু এইবিলাক যোন ভুক্তভোগী তেওঁলোকেহে বুজি পায়। যি কি নহওক স্বাগতম জনাইছো সকলোকে মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো অইনবিলাক ভিডিঅ'ৰ দৰে নহয়, আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো এই ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে ল'ব লাগিব পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীত দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে শ্বহীদ বৰণ কৰা বীৰ সেনা জোৱান দীনেশ কুমাৰ দেৱলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। আকৌ এজন বীৰ জোৱান আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হ'ল। লগতে তাত যিসকল কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকক যে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখে তাকেহে কামনা কৰিছো দেই। আৰু সঁচাই নিউজবিলাক চালে বহুত মনটো দুখ লাগে। আৰু কিয় দুখ লাগে জানেনে? কাৰণ কি জানে, ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিলে তেতিয়া মোৰ দেউতাকো তেনেকে নিছিলে আৰু আমি তেতিয়া সৰু সৰু হৈ আছিলো। আৰু সৰু সৰু হৈ থাকোঁতে তেতিয়া কি আছিলে জানেনে? অকল ৰেডিঅ'টো আছিলে আৰু তেতিয়াতো টিভি চিভি নাছিলে। আৰু যেতিয়া যুদ্ধ হৈছে বুলি মানে গম পাওঁ, এতিয়াতো ফোন কৰিব পাৰে, তেতিয়াতো ফোন নকৰে ন, টেলিগ্ৰাম দিয়ে, মানে জৰুৰী হ'লে বা ঘৰত কিবা হৈছে বুলি টেলিগ্ৰাম কৰচোন, তেতিয়া মানে ছুটি আহিবলৈ দিয়ে। এতিয়াতো ছুটি বাতিল কৰিছে ন, তেতিয়াও ছুটি বাতিল কৰে। তথাপিও কি জানেনে, তেতিয়া আমি ৰেডিঅ'টো কাষতে মানে শুনি থাকোঁ। মায়ে কাণ পাতি পাতি তেনেকে শুনি থাকে, কান্দা কটা কি হুলস্থুল। আৰু সেই পৰিস্থিতিটোৱে এতিয়া হৈছে। এতিয়া যিসকলৰ তাত মানে কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে, আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন বা আৰ্মি চাৰ্মি সকলো আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি দেই। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেওঁলোকক যাতে শক্তি দিয়ে, ভগৱানে যে তেওঁলোকৰ মানুহকেইজনক বা আমাৰ বীৰ সৈনিকসকলক যাতে সুকলমে আকৌ আহি পেলাই মানে দেশ মাতৃক সেৱা কৰিবলৈ সুবিধাকণ পায়, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ একদম মানে বহুত 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 মানে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ বা তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিছোঁ, সকলোৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিয়ে, যাতে এগছি চাকি জ্বলাই তেওঁলোকৰ মানে মংগল কামনা কৰে। মই আজি বৃহস্পতিবাৰ, যিহেতু মই বৃহস্পতিবাৰে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু মই শুকুৰবাৰেহে দিম, মই এক্সট্ৰাকৈ এগছ চাকি দিছোঁ জানেনে। বহুত বেয়া লাগিছে এইবিলাক দেখি পেলাই। আৰু যিকোনো একেদিনত মানে যিকোনো ভিডিঅ' বনাবলৈকো মন যোৱা নাই, কিন্তু নহ'লেও কি হ'ব, বনাই থকা মানুহ ন, কিবা এটা বনাবই লাগিব। আৰু কি ক'ম, সঁচাকৈ ইফালে যাওঁ টিভিটো চাওঁ, সিফালে যাওঁ বা মোবাইলটোতো থাকেই, আৰু মোবাইলতে এইবিলাক চাই কৰি মনটো বহুত দুখ লাগিছে। সঁচাকৈ কি যে হৈ গ'ল ন। অলপ দিনটো বন্ধ হৈ আছিলে, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে সেইবিলাক অপৰাধমূলক কামবিলাক কৰি থাকে আৰু এইবাৰ বহুত মানে সীমা চেৰাই গৈছে। গতিকে সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিব, সেইবিলাক মানে সেই প্ৰশাসন বিষয়াবিলাককো আশীৰ্বাদটোৱে, আমি আশীৰ্বাদৰ বাহিৰে জানো কিবা দিব পাৰিম ন। যি কি নহওক এটা খবৰ শুনি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু খবৰটো কি জানেনে? ভাৰতীয় সেনাৰ গুলীত পাকিস্তানী সেনা ধৰাশায়ী হৈছে আৰু তাৰে কিছু অংশ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছো, চাওক। इस समय मैं अमृतसर के गांव मक्खन विंडी में हूं, जहां पर कल रात एक जो मिसाइल है वो गिराई थी और दो के करीब दो। और ये भी मैं बता दूं कि अमृतसर के 3 गांवों से ऐसी जानकारियां आज सुबह निकलकर सामने आई। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें अपलोड की गई, जिससे पता चला कि अमृतसर के 3 गांव में मिसाइल के जो पार्ट हैं वो मिले। तो एक बार तस्वीर दिखा दूं कि हम अमृतसर के मक्खनविंडी गांव में हैं और इसके बिल्कुल साथ जेठूवाल गांव, जो कि महज इस गांव के बिल्कुल साथ लगता है, कुछ ही मीटर की या किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो खेत हैं, इन्हीं खेतों में वो जो पार्ट है मिसाइल का वो गिर। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको पीछे हटाया जा रहा है क्योंकि 1.5 किलोमीटर का जो इलाका है उसे खाली करना होगा। उसके बाद इस मिसाइल को डिफ्यूज किया जा सकता है। भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। और ये भी अब खबर मिल रही कि चंडीगढ़ से एक विशेष जो टीम है वो यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद इस मिसाइल को डिफ्यूज किया जाएगा। और तस्वीर में एक बार दिखा दूं, जहां पर सफेद रंग की पट्टी नजर आ रही है, कॉर्डन ऑफ किया गया है उस एरिया को। हालांकि सुबह जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसमें लोग इस मिसाइल के बिल्कुल पास बैठ के इसको हाथों में लेकर इसके तस्वीरें खिंचवा रहे थे। हालांकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये जो मिसाइल है वो जिंदा है, वो लाइव है। तो इसीलिए इसको अब डिफ्यूज करने की जो कार्रवाई है वो इंडियन आर्मी की तरफ से की जानी है। सामने
क्योंकि सुबह जब यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर पहुंचे से जांच शुरू की गई, उसके बाद जो मिट्टी की ट्रालियां यहाँ पर मंगवाई गई, उसके बाद अब बोरियों में मिट्टी भर के रखी गई है, जिसके साथ इस मिसाइल को, जो मिसाइल का पार्ट है, तो सबसे बड़ी बात कि लाइव है, तो उस लाइव पार्ट को पहले मिट्टी से ढकना है, कवर करना है, उसके बाद इसको डिफ्यूज किया जाएगा। हालांकि सुबह जो है 5:30-6 बजे के आसपास इस जो मिसाइल हो गया, अभी भी इसको डिफ्यूज जानकारी मिल रही है कि रात को जो चंडीगढ़ से टीम यहां पहुंचेगी उसकी तरफ से इस मिसाइल को डिफ्यूज किया जाएगा। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से गुजारिश की जा रही है कि यहां से जो लोग हैं वो पीछे हट जाएं। पहले 500 मीटर की दूरी पर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग हैं वो यहां से चले जाएं, चाहे कोई मीडिया कर्मी है या फिर जो आम यहाँ के नागरिक हैं, गांववासी हैं, तो सबको एक अपील की जा रही है कि वो इस इलाके को खाली कर दे, क्योंकि ये जो मिसाइल है इसमें जो विस्फोटक है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर तक उसकी जो मार है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो लोगों की कीमती जिंदगियों को मद्देनजर रखते हुए ये आदेश दिया जा रहा है। अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है पुलिस की तरफ से कि लोग यहाँ से पीछे हट जाएं। तो अपने आप में बड़ी एक जानकारी है, क्योंकि कल रात को अमृतसर में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई कि जिसमें कहा गया कि जो अमृतसर में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। हालांकि रात को पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इससे साफ इनकार कर दिया गया कि किसी तरह का कोई धमाका अमृतसर में नहीं हुआ, क्योंकि अमृतसर सिटी की बात होती, लेकिन ये जो इलाका है ये अमृतसर जो रूरल पुलिस के अंतर्गत आता है। और अमृतसर जिले की अगर बात करें तो अमृतसर जिले का ये गाँव है, और दोनों के अलावा एक और तीसरा गाँव जो है पंधेर, तो ये भी बात सामने आ रही कि तीनों गांव में जो हिस्से मिले हैं वो एक ही मिसाइल के हिस्से हैं। और भारतीय सेना का एंटी उसकी तरफ से तुरंत कार्रवाई मिसाइल को नीचे गिराया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से पीछे हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार जो गांव के लोग हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, जिस कारण आर्मी की जो टीम यहां पहुंची है उसको एक बड़ी दिक्कत आ रही कि इस जो मिसाइल को किस तरीके से डिफ्यूज किया जाए। एक और चीज मैं बता दूं कि जिन खेतों में ये मिसाइल का जो हिस्सा है वो गिरा, तो उसके आप आसपास देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका है, लेकिन जो वायुसेना की तरफ से कार्रवाई की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब इस मिसाइल को दागा गया तो हवा में ही इसको जो है नष्ट करने की जो एक बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई। और उसके बाद इस मिसाइल के जो कई टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पर मिले, कई जगहों पर कुछ डिवाइस भी मिले हैं, तो वो भी कहा जा रहा है कि मिसाइल का ही हिस्सा हो सकते हैं। तो एक और जो अहम चीज यहाँ पर देखने को मिली कि जो मिसाइल है वो ये बताया जा रहा है कि चाइनीज मेड मिसाइल है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से हथियार जो हैं वो मुहैया करवाए जाते हैं। तो पाकिस्तान ने एक बड़ी हम कह सकते हैं कि नाकाम हरकत की कोशिश की है। पंजाब में कई जगहों पर जो भारतीय सेना के ठिकाने हैं उस पर हमला करने की एक नापाक कोशिश की गई थी, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। और अब हालात ये हैं कि सुबह से जो मिसाइल रात को गिराई गई थी उसकी जानकारी सुबह
तब मीडिया तक पहुंचती है, जब सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट, कुछ जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उसमें डाली जाती है। और उसमें जितने भी जो तस्वीरें, उसमें आप देख सकते हैं कि लोग उस मिसाइल के बिल्कुल आसपास बैठे नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कई तस्वीरों में उस मिसाइल को लोगों ने हाथों में पकड़ा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो मिसाइल जिंदा है, वो मिसाइल लाइव है और उससे एक बड़ा विस्फोट किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो मिसाइल इन खेतों की बजाय घरों पे गिरती, किसी रिहायशी इलाके पर गिरती, तो लोगों की जानें भी जा सकती थी। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना की कि किसी भी जान माल का नुकसान किए बगैर उस मिसाइल को गिराया गया। उस मिसाइल को अब डिफ्यूज करने की कार्रवाई जो है वो जारी। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये वो खेत हैं जहां पर वो मिसाइल का टुकड़ा जो है वो आकर गिरता है। और सुबह से चाहे वो पंजाब पुलिस की बात कर लें, भारतीय सेना की बात करें, तो इंडियन आर्मी के कई जो सीनियर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही थी और पहले कहा जा रहा था कि इसको जो है डिफ्यूज कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में जो वायुसेना के कुछ सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उनकी जो आपसी बातचीत हुई, तो उससे ये अब पता चल रहा है कि ये जो मिसाइल है ये काफी घातक है और ये एक बड़ा विस्फोट कर सकती है अगर इसको डिफ्यूज किया जाता। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जो इलाका है, जो एरिया है, उसको खाली कर दिया जाए। तो एक बार मैं ये भी दिखा दूं कि मीडिया जो है वो उस जगह से काफी दूर जो है इस समय बैठकर उस चीज को कवर कर रहा है, लेकिन गांव के काफी लोग जो हैं वो मीडिया के साथ यहां पर पहुंच गए थे। तो उनको अपील की गई है, उनको बड़े धैर्य से ये निर्देश दिया गया है कि वो यहां से पीछे हट जाएं। तो फिलहाल यहां पर कुछ मीडिया कर्मी नजर आ रहे हैं, पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो नजर आ रहे हैं। और अब ये देखना होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी 3-4 घंटे और इसमें लग सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से एक विशेष टीम जो है वो यहाँ पहुंच रही है। उसकी तरफ से इसको डिफ्यूज करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो अभी इसमें कितना समय लगता है ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन सुबह जैसे ही इसके बारे में पता चलता है उसके बाद तुरंत पुलिस और उसके बाद भारतीय कार्रवाई करते हुए नजर आते और बिल्कुल में वो मिसाइल का लाइव मिसाइल का जो टुकड़ा है वो गिरा था और उसको अभी डिफ्यूज किया जाना है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि सुबह से लोग उसके आसपास जाके उसके साथ तस्वीरें जो है खिंचवाते हुए नजर आए थे। हालांकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि भारतीय सेना ने जो एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान द्वारा दागी गई मिसाइल को नीचे गिराया है और किसी भी जानी माली नुकसान के बगैर इस मिसाइल को जो है लाइव नीचे उतारना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी है और एक बड़ी कामयाबी भी इसको माना जा रहा है। कैमरामैन हनीश कुमार के साथ राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। शॉर्ट्स দেখিলে নহয়নে, দেখাৰ পিছত মনটো অকমান হলেও শান্তি লাগিল। আৰু শেষত এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, সকলোৱে যাতে আমাৰ বীৰ সৈনিকসকলক আশীৰ্বাদ কৰে, সুশৰীৰে যাতে তেওঁলোকে আকৌ স্বগৃহত আহি উপস্থিত হ'ব পাৰে, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু মইতো কৰিছোৱে বাৰু, আৰু সদায় ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই সেই কথাটো কমেই। গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক, তাকেই কামনা কৰি মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।